Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. Just yesterday we have to study the topic that is being given you through this video, accounting for companies, issue of shares. You must have studied about the companies, but dear children, a little bit of focus. I would like to tell you the meaning of company, the types of the company. My dear children, just you can see a company is a voluntary association of person formed through the process of law for the purpose of carrying on some business. आपने इंग्लिश में अभी देखा just the voluntary association of person carrying a business formed by law. कंपनी एक तरह से लोगों का समूह है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, संगठन है, जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी को स्टैब्लिश किया जाता है और इसका अपना तमाम तरह के जो लेखक हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑथर्स has given the different definition of the company. You can see just Lord Justice Lindley defined company as follow. It is an association of persons who contribute money or money's worth to a common stock and imply it for some persons. A company is an artificial person created by law, having separate entity and with a perpetual succession and a common seat. This one is the company is an artificial body having perpetual succession, means perpetual existence. Separate entity means the company is separated, the owners of the company and the business, the firm, the company, according to the separate entity assumption. Dear children, you know it with a perpetual succession and containing a common seat, or draw the line. First one, company definition: separate legal entity. Second one, common seat. Third one, perpetual evidence. Three, main motive: limited liability. Just you can see over here, limited liability.
transferability of shares, separation of management from owners, transferability of shares, and next one, separate management from its ओनर। छोटा छोटा हम आपको एक फोकस दिखाते हैं कंपनी का क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं। कंपनी लोगों का समूह है, आर्टिफिशियल बॉडी है, क्रिएटेड बाय लॉ कंटेनिंग द सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम इट्स ओनर। ये चीज आप दिमाग में रखें। थोड़ा सा कंपनी के विषय में जानें, कंपनी क्या है। आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया कि उसी से फीचर मैंने ड्रा किया। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी है, लॉ चलता है इसका अपने कानून के तहत। दिस वन इज द आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल बॉडी created by law, company law. Just you have to study in former classes BCom और उसके बाद मर्केंटाइल लॉ, कंपनी लॉ, मतलब जो भी बिजनेस कंपनी के थ्रू होता है, जो भी ऑपरेशन है, जो भी कंपनी की एक्टिविटी है, वो सारा कुछ लॉ के ऊपर डिपेंड है और इस प्रिंसिपल्स के ऊपर है, उन सिद्धांतों पर आधारित हैं जो दिस वन इज क्रिएटेड बाय लॉ। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल एग्जिस्टेंस और लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम इट्स ओनर। नाउ सी फर्स्ट फीचर्स ऑफ द कंपनी। क्या होता है फीचर? मतलब ये कंपनी का डेफिनेशन जब आपने जाना तो बहुत सारा फीचर्स, मतलब वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, लोगों का एक संगठन होता है जो उसमें मनी या मनी के योग्य कंट्रीब्यूशन करके कंपनी का निर्माण करते हैं। और कंपनी किसी एनजीओ के तहत नहीं स्थापित की जा सकती है। मतलब कंपनी को स्थापित करने का उद्देश्य होता है फॉर्मिंग अ बिजनेस, एक बिजनेस करने के, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव टुवर्ड द प्रॉफिट। कंटेनिंग separate legal entity according to the Company Act, the owners of the company and the business, the company is separated according to the separate legal entity education. Common seal, just like it is the artificial body, so it has the common seal. कंपनी की अपनी मुहर होती है, अपना सब कुछ होता है। So it is an artificial body created by law. Just the formation of the company is formed through the law. Now, perpetual existence or refers such things, such matters, whether the members of company may come and or may go, but the company goes on forever. Remember, चाहे इसके सदस्य आते रहें चाहे जाते रहें, कंपनी कभी रुकती नहीं है, कंपनी हमेशा चलती रहती है। इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई कंपनी का
मेंबर यदि दिवालिया हो गया, चाहे उसके पास कुछ नहीं है, चाहे वो करने के लायक नहीं है, तो ऐसी दशा में कंपनी जो है क्या है, उसका एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व है वो मिटता नहीं है। इवन इफ वंडर, जब तक कंपनी बंद नहीं होती है किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, तब तक मतलब लॉ के द्वारा बंद नहीं होती है, तब तक इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कोई आए चाहे कोई आए। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की जो लायबिलिटी होती है, मतलब जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिट होती है, सीमित होती है। मतलब किन्हीं दशा में यदि कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब बंद हो जाती है, तो whether the property of the company is not sufficient to pay the debts of the company, no, their personal property cannot be taken to pay the debts, just only whatever the shares that can be used। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कंपनी किसी दशा में बंद होती है, तो जो उसके अंशधारी होते हैं, जो उसके ओनर होते हैं बेटा, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब जितने का शेयर है उतने ही तक उनकी लायबिलिटी है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम इट्स ओनर, और मैनेजमेंट को ये और ओनर को दोनों को अलग अलग रखती है कंपनी। ये है फीचर कंपनी का। अब टाइप्स ऑफ कंपनी में आइए, तो टाइप्स ऑफ कंपनी में आपका होगा अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तीन तरह की कंपनी होती है। अनलिमिटेड कंपनी मतलब इस कंपनी में जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यदि किसी दशा में कंपनी ऑन सम रेलिवेंट रीजन whether the company is wound up, then what happen, the personal property, whether the property of the company is not sufficient to pay the debts of the outsider liability of the company, the personal property can be taken into consideration of the members, that is unlimited। Company limited by guarantee, whatever the guarantee made by the shareholders in condition of company wound up, then the जो गारंटी दिया रहता है शेयर की, जो गारंटी दी गई रहती है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर fellow is taken into consideration, remaining। Then after you can find the transferability of shares, means with the help of a stock exchange, dear children, the shares of the company can be transferable। मतलब इनको हस्तांतरित किया जा सकता है, इन्हें ओपन जो इसका स्टॉक शेयर मार्केट होता है उसमें बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम इट्स ओनर, और ये मैनेजमेंट और ओनर को सेपरेट। अब ये बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हम बता रहे थे आपको। अब टाइप्स ऑफ कंपनी हम बता रहे हैं आपको। टाइप्स ऑफ कंपनी में आप देखेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आप देखेंगे इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी होती है उसमें जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जितना तक गारंटी दिए रहते हैं वहाँ तक उस कंपनी का उनका लायबिलिटी बनता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, in case of such company the liability of the members is strictly limited to the extent of the
नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर्स। जितने भी इस कंपनी के मेंबर होते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उनकी जो लायबिलिटी होती है बेटा, जितना शेयर्स वो प्राप्त किए रहते हैं, अगर जो 5000 रुपीज़ का शेयर्स है तो 5000 रुपीज़ तक ही उनकी लायबिलिटी होती है। देयर पर्सनल वेदर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट सफिशिएंट टू पे इट्स आउटसाइडर लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ company winding up, then the personal property of such members cannot be taken into consideration. Remember, मतलब इनका जो पर्सनल जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, जहाँ तक शेयर लिए हैं वहीं तक की उनकी लायबिलिटी। ये 3 तरह की कंपनी होती हैं। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसी पर हमें पढ़ाई करनी है। ये कितने तरह की होती हैं? प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, वन पर्सन कंपनी होती है। इसको ध्यान देना है। अब हम आपको बता रहे हैं वन पर्सन कंपनी ROPC कंपनी एक्ट 2013 ओनली in such types of the company the only one person is the owner of the company। OPC वन पर्सन कंपनी, इसमें एक ही व्यक्ति कंपनी का ओनर होता है। ध्यान रहे, खूब ध्यान से इसको देखेंगे। वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन OPC, एक ही व्यक्ति एक कंपनी का एकल कंपनी का निर्माण कर सकता है। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। इसकी जो पेड अप कैपिटल होती है बेटा 50 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एकल कंपनी का एवरेज टर्नओवर 3 ईयर का 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट्स याद करने योग्य है। मतलब जो इसका पेडअप कैपिटल है वो 50 लाख से अधिक नहीं होगा, और इसका जो टर्नओवर है 3 ईयर के एवरेज में 2 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। क्लियर? और इस तरह की कंपनी चैरिटेबल पर्पज के लिए फॉर्म नहीं की जा सकती। इट कैन बी फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पज ओनली। जो OPC है बेटा, इस तरह की कंपनी किसी चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं बन सकती, कंपनी का रूप नहीं हो सकता। वो केवल बिजनेस पर्पज, बिजनेस के उद्देश्य से ही फॉर्म की जा सकती। अब हम आपको बेनिफिट इसका बताते हैं। OPC इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है। द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉलिंग ऑफ AGM नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, कोरम फॉर मीटिंग, प्रॉक्सीज सेल नॉट अप्लाई टू OPC। और कंपनियों में क्या होता है, कोरम मीटिंग होती है और सारी चीजें होती हैं, इस कंपनी में उसका छूट। अब आए, ये OPC है और हमको पढ़ना क्या है? जो सबसे जरूरी चीज है वो है बेटा, ये थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन था, परिचय था आपका ये कंपनी का कि 3 तरह की कंपनी होती हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको अकाउंटिंग प्रोसेस इशू ऑफ शेयर्स के विषय में बताएंगे। शेयर का मतलब क्या होता है, ये शेयर होता क्या है कंपनी का, इन सारी चीज़ों के विषय में आप स्टडी करेंगे। पहले ये आइडेंटिफिकेशन था कंपनी का, मीनिंग ऑफ कंपनी, कितनी तरह की कंपनी होती है,
क्या होती है कंपनी, किस चिड़िया का नाम होता है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से अपनी बुक खोल करके इस लेक्चर को अगर जो आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट हो तो आप इसमें शामिल हो और देखेंगे कि आपको लगेगा कि आपकी भाषा में ये है और आप ऐसा देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।